Welcome, guys. Welcome to day 2 of our workshop. So yesterday, as you know, we are in the 2 days of workshop for 2024 UPSC preparation. Yesterday, we discussed comprehensively about prelims preparation. And today in the workshop, we'll be discussing about mains preparation. So I hope you had a fruitful time yesterday and looking forward for, we hope that you will have another fruitful time today. So like yesterday, we have today with us Praveen sir. Praveen sir is our mentor head at Civils Daily, and he also looks the Pune branch at Civils Daily. Also, we'll be joined by a super mentor, IPS Shubham. So what we'll do is the format of the discussion would be like Praveen sir will give a brief introduction about the agenda of the day, what we are going to discuss. He'll tell something about himself, Civils Daily, and his team, and then we'll give the floor to Shubham also. So Shubham will also briefly tell us about how he began his preparation and what his journey has been like. Briefly होगा ये छोटा मोटा. उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपेयर करना है. यही इस पूरे वेबिनार का पर्पस है. तो सेल्फ स्टडी में क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे प्रवीण सर और शुभम सर के साथ एक डिस्कशन फॉर्मेट में. बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा. दोनों भाषा में हमारे दोनों स्पीकर्स कंफर्टेबल हैं. तो ऑफ कोर्स यू कैन टाइप डाउन योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. हम उसको एंड में लेंगे भी, राइट. सो ओवर टू यू प्रवीण सर. प्लीज स्टार्ट द सेशन फॉर द डे. Yes. Thank you so much, Saket, for this wonderful introduction. Hello, guys. Very good evening to all of you. So today I am here to deliver something which is really important as per the mains is concerned, and our agenda is to crack mains of UPSC CSE 2024, which will be on September 2024. We are having around like 17 months, okay, and which is enough time. But please keep in your mind that we are not early bird, okay, because like a lot of my students who are taking mentorship under me or under my team, they started their preparation for 2024 long back since December 2022. So we are not we are not whom started early, or we don't have that chance key we can settle and then we'll start, because if you are not on the age, it means you are taking too much of space, okay. So bottom line यही है कि मतलब बहुत जल्दी नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, सही टाइमिंग है. यही टाइमिंग होना चाहिए अगर आपको 24 का मेंस निकालना है, ठीक है. कल हमने बहुत सारी बातें प्रीलिम्स पे करी, एंड जैसे मैंने बताया कल भी कि मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट ऑलरेडी सिविल्स डेली पे हमारे टीम के अंडर मेंटरशिप ले चुके हैं. पर्सनली मेरी बात बताऊं तो मैंने अराउंड 72 स्टूडेंट्स को जो अभी रैंकर है उनको मेंटर करा है. तो जो हमारे सिविल दिल्ली के मेंटरशिप के प्रोसेस के थ्रू रैंकर बने हैं मेरे अंडर पर्टिकुलर, एंड हमारे फाउंडर जो है सजल सर, उनके अंडर तो मोर देन 300 ऑफिसर से जो रैंकर बने हैं. तो बॉटम लाइन ये नहीं है कि अचीवमेंट क्या है. बॉटम लाइन इज जो अभी साकेत ने आपको समझाया कि हमारा आज का टॉपिक है विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी क्लासेस, नाइदर फॉर मेंस नॉर फॉर प्रीलिम्स. आप सिर्फ सेल्फ स्टडी, सेल्फ डिसिप्लिन, मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रेटजी, इसके साथ आप कैसे टेक्निक एंड टूल किट यूज करके मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी आपके वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. Shubham, the process is, so we are discussing how to crack mains through self-studies. Anybody who's appearing next year for mains, or of course for the UPSC cycle. So how should he or she go about mains through self-studies? तो प्रवीण सर और आप मिलकर डिस्कस करोगे कुछ चैलेंजेस जो एक एस्पिरेंट फेस करेगा उस पूरे मेंस के साइकिल को लेके, स्पेशली मेंस को साइकिल को लेके. प्रीलिम्स को लेके हमने कल बात कर ली है. तो उसमें ऑफ कोर्स प्रवीण सर ने अपना एक इंट्रोडक्शन दे दिया है. आप भी ब्रीफली बता दो कि ऑफ कोर्स आपकी जर्नी कैसी रही है एंड हाउ हैज ऑफ कोर्स गाइस जो आपने सुन रहे हैं, शुभम सर का एक रॉ एंड रियल भी रिलीज हुआ है अपने यूट्यूब पर, तो आप वो देख सकते हैं. शुभम ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है कि ये जर्नी कैसी रही है. बट फिर भी शुभम, अगर आप 2-2.5 मिनट में बता सको अपना पूरा यूपीएससी एक्सपीरियंस, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं. Sure, Zakir. Thank you so much. So yeah, hi everyone. I got selected into my third attempt. Third attempt में मैं IPS बना था, and first attempt and second attempt I could not clear prelims.
तो सेकंड अटेम्प्ट में सीसेट नहीं हुआ था और फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ 1.5 मार्क्स से रह गया था मेरा। बट जो लोग अभी 24 के लिए टारगेट कर रहे हैं, वो लोग ऑब्वियसली ऐसे ही टारगेट करना है कि 24 में, जिसके लिए अपने पास काफी टाइम है, तो वो एक साल मतलब 1-1.5 साल जो है उसमें पूरा ही टारगेट करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेना चाहिए। तो मेरा ऐसा हुआ था कि फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था, लेकिन फिर थर्ड अटेम्प्ट के टाइम पे जैसे रॉयल रियल में भी मेरी बात हुई थी साकिब भाई से, कि वो एक जो रहता है कि कॉन्फिडेंस कैसे मेंटेन किया या जो पॉजिटिविटी थी वो कैसे मेंटेन करी। तो वो मैं तब भी बताया था कि इट वाज ड्यू टू मेंस का कॉन्फिडेंस। तो मैंने मेंस इतना अच्छे से किया था कि आई न्यू कहीं ना कहीं के व्हेन आई विल राइट द मेंस आई विल डेफिनेटली मतलब वेयर मिनिमम इंटरव्यू तक तो भी मैं जाएगा ही। तो ये एक चीज थी, तो दैट्स व्हाई मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरव्यू इज काफी सब्जेक्टिव, मतलब इंटरव्यू में मार्क्स का डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाता है, एंड प्रीलिम्स तो बहुत डायनामिक है। तो प्रीलिम्स अगर हो जाता है तो अगर आपको एक ही करना है कि जो भी टारगेट करना है वो मेंस में ही करना है। तो मेंस अगर अच्छा रहा, जो आज अपन मेंस पे ही बात करने वाले हैं, तो इफ पीपल मतलब इफ यू आर गुड एट मेंस तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ एज, एंड फिर इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स आ गए यू विल डेफिनेटली गेट इनटू अ गुड सर्विस एंड गुड कार्डर। बट वो जो लिस्ट में आना है, लिस्ट में आने के लिए सबसे मेन पार्ट आपका मेंस का ही रहेगा। तो थर्ड अटेम्प्ट में जो मेरा मेंस अच्छे से हुआ था, फाइनली फिर मतलब आईपीएस बन गया था मैं। तो उसमें एंथ्रो के भी मार्क्स काफी अच्छे थे। अब अपन डिटेल में बात करेंगे ये सारी चीजों पर। राइट। तो जैसे शुभम सर ने, प्रवीण सर कहा कि मेंस एक ऐसी चीज है जिसपे कमांड सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसका एक डिफाइंड सिलेबस है ऑफ कोर्स। राइट। बट अगर हम देखते हैं कि सिलेबस, जो कोई एस्पिरेंट है जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहा है और 24 का अटेम्प्ट देखेगा, तो सिलेबस इतना वास्ट है। तो वो वास्ट सिलेबस देखते ही वो जो क्लासरूम प्रोग्राम्स होते हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिवली उसको बताते हैं कि ये सिलेबस हम आपको इतने टाइम में फटाफट खत्म करा देंगे, और वो ऐसे अट्रैक्टिव वे में उनको प्रेजेंट करते हैं कि जो भी एस्पिरेंट है वो सबसे पहले उस क्लासरूम प्रोग्राम में ही जाता है। बट ग्रेजुअली एज क्लासरूम प्रोग्राम प्रोग्रेसेस, तो वो चीज खत्म होती जाती है, बिकॉज सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होता। और जब उसका पूरा क्लासरूम प्रोग्राम खत्म हो जाता है, उसको रियलाइज होता है कि वो रेडी ही नहीं है अटेम्प्ट लिखने के लिए। तो प्रवीण सर, ये चैलेंज क्या आप सबने फेस किया था एज एस्पिरेंट्स, और ये चैलेंज कितना रियल है ऑफ कोर्स, और अगर ये रियल है तो इस पे क्या होना चाहिए? तो प्रवीण सर, आपसे शुरू करते हैं, आप ही बताओ पहले, तो फिर शुभम भाई पे आएंगे। राइट राइट साकिब, सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया है साकिब। देखो क्या होता है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मेरा भी था लॉन्ग बैक इन 2013, जब मैंने भी दिल्ली आया था और स्टार्ट करा था। तो क्या लगता है कि अच्छा यूपीएससी करना है कि तो कौन सी क्लासेस ज्वाइन करूं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। और क्लासेस कौन सी ज्वाइन करूं, मतलब फाउंडेशन कौन सा ज्वाइन करूं। लेकिन ये बात हमें समझनी होगी कि कोई भी क्लास, वो फाउंडेशन का जब क्लास होता है, जो लेक्चर होते हैं, वो मोनोलॉग होता है। उस मोनोलॉग में टीचर पढ़ाते हैं, बट आपको कितना ग्रास्प हो रहा है, या आपको उतना, आपको उसका कितना फायदा एक्चुअल एग्जाम में होने वाला है, दैट डूम्सडे पे, जिस डूम्सडे पे आप एग्जाम लिखते हो, उस पे मैटर करता है कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो कितना है। तो जितना मैं समझ पाया हूँ इस प्रोसीजर को, तो एग्जाम की डिमांड बहुत बदल चुकी है, और जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है उसका उतना कन्वर्जन नहीं होता है मेंस में। ठीक है, और आप कितना ग्रैब करते हो, ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक थिंग होती है, क्योंकि आप क्लासरूम करोगे लगभग 1.5 साल पहले, उसके 1.5-2 साल बाद आप मेंस लिख रहे हो, तो उसका कुछ रिलेवेंस बचता नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ हद तक क्लासेस काम आती है। इकोनॉमी कह लो या कुछ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, वो भी मैटर करता है कि टीचर एंड सारी कॉन्सेप्ट या आपका बैकग्राउंड क्या है। तो मैं कहूंगा कि ये जो एक इल्यूजन है कि क्लासेस करने के बाद रैंक आनी चाहिए, जो सबसे गलत है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए सर? फिर अब आपने तो बता दिया कि नहीं करना या फिर सेकेंडरी है। तो होना ये चाहिए कि आपका परसिवरेंस चाहिए। ठीक है, और हार्डवर्क विथ सम स्मार्टनेस, ये नीड ऑफ अवर है। तो इसमें कैसे करें? बिकॉज देयर इज नो असेसमेंट टेस्ट ड्यूरिंग द यूपीएससी सिविल सर्विस प्रिपरेशन। सबको लगता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ रही है, दिल्ली में है 3 साल से, एग्जाम टफ है शायद इसलिए निकल नहीं रहा। बट एग्जैक्ट आपको पता होता है कि आपने कितने आंसर लिखे। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल मेंस लिखने के बाद भी वही गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने आंसर प्रॉपरली लिखा ही नहीं है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन पहचानी नहीं है, तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो आपको ऐसे समय में एक बिग ब्रदर, एक मेंटर, एक गुरु, जो टीचर नहीं है और ना ही कलीग है, एक ऐसा लेयर वो चाहिए जो आपको हैंड होल्ड करे, आपको बताए, आपकी गलतियां सुधारे, चाहे स्टिक मॉडल से हो या कैरेट मॉडल से हो, आपको रिफाइन करे आपकी चीज को। तब जाके आप उस बेसलाइन पे पहुंच पाओगे जहां पे आप
405 410 नंबर ले आ पाओगे। राइट। शुभम सर इन्हीं की बात, सर की बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि जैसे आप भी एस्पिरेंट थे ऑफ कोर्स, और सिलेबस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वास्ट सिलेबस होता है, तो ये हैंड होल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई सेल्फ स्टडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको बड़ा फाउंडेशन नहीं ज्वाइन करना है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, तो वो कैसे इसको अप्रोच करेगा थ्रू सेल्फ स्टडी, अगर आप वो पर्सपेक्टिव उन बच्चों को दे पाओ जो 24 टारगेट कर रहे हैं थ्रू सेल्फ स्टडीज। ओके। तो राइटली जैसे मतलब आपने कहा है, जैसे प्रवीण सर ने भी कहा कि मतलब जो अपन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो मतलब नॉट टू क्रिटिसाइज, बट मैं भी वाजीराम में था जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। लेकिन ये कोई भी क्लासेस लोगे आप जिनका फाउंडेशन कर रहे हो, तो वो आपका 30-40% से ज्यादा सिलेबस करेंगे ही नहीं कवर। और उसमें भी वो 30-40% बहुत तक ऐसे प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है। तो मेंस का प्रिपरेशन काफी पैरेलली काफी अलग चलता है, मतलब बस एमसीक्यूज रहते हैं प्रीलिम्स में, लेकिन मेंस में काफी आंसर राइटिंग का पार्ट रहता है, या आपको एसेस लिखना है तो एसेस की प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, तो मेंस काफी कॉम्प्रिहेंसिव चीज है। तो इसलिए एक मेंटर की डेफिनेटली हेल्प होगी। जैसे मतलब जो भी अपना कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग स्टार्ट करके अगर आंसर लिखते जा रहे हो, तो इट डजेंट मेक सेंस अगर आपको कोई बता रहा ही नहीं है कि आप सही लिख रहे हो क्या नहीं। फिर तो ऐसे आप 1000 आंसर लिख दोगे, मेंस में जाओगे तो भी अगर गलत दिशा गलत मतलब वे में लिख रहे हो, कि अगर इंट्रोडक्शन नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, बस बॉडी लिख रहे हो, तो फिर उसका सेंस नहीं बनता ना। एक स्ट्रक्चर रहना चाहिए। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपन जो एक आंसर लिखते हैं, जो सब हेडिंग्स लिखते हैं, ऐसे काफी चीजें हैं जो जिन्होंने एग्जाम निकाला है या जिन्होंने बहुत बार मेंस लिखा है, या जिनका एक्सपर्टीज है इन सब्जेक्ट्स में, जिन्होंने मेंस के लिए काफी, जिनकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है, वो लोग डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि आंसर लिखने कैसे है। जैसे मैंने साजल सर का काफी हेल्प लिया था जब मैं मेरा सेकंड मेंस लिख रहा था। तो वो टाइम पे सिविल्स डेली का जो स्मैश रहता है, तो वो स्मैश ज्वाइन करके मैं पेपर लिखता था, एंड देन साजल सर डायरेक्टली मेरे से 1-to-1 सेशन लेते थे कि मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा जीएस का स्कोर बढ़ा था। तो इसलिए ऑब्वियसली मतलब मेंटरशिप इन द सेंस, एक मेंटरशिप मतलब ऐसे है कि कोई ना कोई तो चाहिए आपको बताने को जिसको एक्सपर्टीज है, मतलब ऐसे रैंडमली कोई भी नहीं, तो ऑब्वियसली जिसका एक्सपर्टीज है वैसे कोई किसी का हैंड होल्डिंग बहुत जरूरी है। राइट। प्रवीण सर, एक चीज बहुत कॉमन है, दे से दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। हर कोई टॉपर यूट्यूब पे ये कहता ही है, और शायद ये सही भी है कि इंटीग्रेटेड मैनर में इस एग्जाम की तैयारी होनी चाहिए, वरना आपको बरसों लग जाएंगे, एग्जाम होगा नहीं क्रैक। तो ऑफ कोर्स ये इंटीग्रेटेड मैनर में कैसे पढ़ाई होती है, एंड कमिंग टू दीज फाउंडेशन क्लासेस ओनली, बड़ी क्लासेस जो हैं वो इंटीग्रेट, अब बच्चा पढ़ रहा है तो वहां पे या तो मेंस पढ़ रहा है, वो कब प्रीलिम्स पे स्विच करेगा, वो कब प्रीलिम्स का टाइम टेबल बनाएगा, वो कब मेंस का टाइम टेबल बनाएगा, फिर उसमें ऑप्शनल भी है, और वो सबकी अलग अलग क्लासेस ले रहा है, तो वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो इंटीग्रेटेड मैनर में कब मेंस मोड में शिफ्ट करे, कब प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट करे, कब ऑप्शनल मोड में शिफ्ट करे। तो ये इंटीग्रेटेड मैनर को कैसे देखना चाहिए एनीबडी हु वांट्स टू प्रिपेयर बाय हिज ओन? प्रवीण सर। राइट। हाँ साकेत, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों के साथ है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। नो मैटर फ्रॉम विच दे बैकग्राउंड दे आर, आईआईटी हो, आईआईएम हो, या नॉर्मल आपने ह्यूमैनिटीज से करा हो। देखो, इसका एक प्रोसीजर है। अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँ तो क्या होता है कि अभी मैं, जैसे मैंने कहा कि आपको लगभग 14-15 मंथ्स प्रीलिम्स को है, उसके बाद एक 2-3 महीने, लगभग 90 डेज 95 डेज आपको मेंस को है। तो 5 फेजेस में हमने इस ड्यूरेशन को डिवाइड किया है। ठीक है। तो जैसे मैं मेरी टीम की बात करूं, या जैसे हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, जिसका अच्छा रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। ठीक है। तो बेसिकली बुनियाद फेज है। बुनियाद फेज 2.5 मंथ्स की होती है, विच इज अ प्री फाउंडेशन फेज। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे फोकस करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, और आपको प्री कम मेंस वाला इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। मतलब क्या करना है कि आपको सुबह, जैसे मैं आपको बताता हूँ डेली का शेड्यूल, तो सुबह आपको एक प्रीवियस क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी चैप्टर के जो आप पढ़ने वाले हो उस दिन में। उसके बाद कोर सब्जेक्ट 1, उसके बाद आपको मिडल में, जब आफ्टरनून में करंट अफेयर करना है, फिर शाम में कोर सब्जेक्ट 2, फिर एंड ऑफ द डे पे आपको रिविजन करनी है। ठीक है। और जब आपको टेस्ट सब्जेक्ट 2 को आप रिप्लेस कीजिएगा टेस्ट पे, एंड रिवीजन की जगह पे आप एनालिसिस कीजिएगा। तो आपका मंडे टू सैटरडे ये शेड्यूल चलना चाहिए, और संडे को जो है आपकी रिवीजन होगी। सो बेसिकली बुनियाद फेज में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं दोनों। देखो, अब आपको ये समझना होगा कि 4 कोर सब्जेक्ट है: इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड फिजिकल ज्योग्राफी मेनली। तो ये 4 कोर सब्जेक्ट है जो प्री कम मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हमने करना भी चाहिए, टाइम टेकिंग है ये। तो इनको कवर करना बुनियाद में बहुत इंपॉर्टेंट है बाय यूजिंग एनसीईआरटीज। उसके पहले
syllabus, previous year question, NCERTs, reference books if needed, follow with topic wise MCQ. तो ये 5 फेज स्ट्रैटेजी बुनियाद में हम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं, हाँ, जब स्टूडेंट पास होता है बुनियाद में तो रैंप अप में शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। पर रैंप अप में हम उनकी आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं ज्यादा। तो यहाँ पे हम आंसर राइटिंग ज्यादा रिफाइनिंग करते हैं। जैसे शुभम ने कहा कि सिर्फ बॉडी लिखते हैं बच्चे, ठीक है, या फिर डिमांड ऑफ क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, जो आता है वो लिखते हैं, जो लिखना चाहिए वो नहीं लिख, जो पूछा है वो नहीं लिखते हैं, तो वो रैंप अप फेज है। और बूस्टर फेज होता है थर्ड। तो बुनियाद 2.5, रैंप अप 2.5 मंथ्स, एंड उसके बाद 4 मंथ का बूस्टर में ऐसा होता है कि आपको 10 नंबर में से 3 नंबर मिल रहे हैं, तो 4.5 नंबर तक आपकी जर्नी कैसी होनी चाहिए। तो 3 नंबर से 4.5 नंबर आउट ऑफ 10 मार्क्स। तो ये जो 1.5 नंबर की जर्नी है, इसको हम कहते हैं बूस्टर फेज। यहाँ पे आपको बूस्ट किया जाएगा, प्रॉपर रिफाइनिंग मिलेगी कि यहाँ कीवर्ड नहीं आ रहा है। डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो मैकफर्सन आना ही चाहिए, ठीक है ना। मैं टूल किट बताऊंगा बाद में सब्सिक्वेंट क्वेश्चन में। तो बेसिकली ये है। उसके बाद आपका प्रीलिम्स फेज, फिर मेंस फेज तो है ही। तो इसमें नोट मेकिंग है, इसमें सब कुछ है, बट ये इंटीग्रेटेड अप्रोच रख के, इसको तोड़ के, इसको आपको ऐसे काम करना चाहिए, साथ में कोई असेसमेंट वाला चाहिए। राइट, अगर ये टूल किट चाहिए सर तो आई थिंक इनको वेबसाइट पे जाके कोई फॉर्म भर देना चाहिए। तो प्रवीण सर से कनेक्ट कर लो और वो टूल किट प्रवीण सर से ले लो, तो आई गेस प्रवीण सर ये हो जाएगा, है ना। तो शुभम सर, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, एज यू सेड कि मेंस आपका बहुत स्ट्रांग था, चाहे प्रीलिम्स हो या ना हो आपको फर्क नहीं पड़ता था, यू न्यू कि जिस दिन मेंस होगा आई विल गेट अ रैंक, एटलीस्ट आई रीच द इंटरव्यू स्टेज, यू वर दैट कॉन्फिडेंट। तो ये इंटीग्रेटेड मैनर वाली चीज कितनी रियल है, और आपको टाइम टेबल को लेके कोई इशू आया था क्या इसमें, बिकॉज भाई कब प्रीलिम्स में स्विच करना है, कब मेंस में स्विच करना है, इसको आपने कैसे मैनेज किया? देखो भाई, मतलब प्रीलिम्स के लिए मतलब इवेंचुअली तो अपन साल भर थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स तो करते ही रहता है। जब भी आप मतलब एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो रहा है, तो साथ में बस क्या करना है, तो साथ में एमसीक्यू सॉल्व कर लिया तो आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन हो रहा है पैरेलली। बस मेंस का थोड़ा डिफरेंट रहता है। मतलब पढ़ाई करने के लिए जो अपना जीएस 1 में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जीएस 2 में पॉलिटी है, जीएस 3 में इकोनॉमिक्स है, ये चीजें आपकी कॉमन है, जो प्रीलिम्स में भी कॉमन है, मेंस में भी कॉमन है। मेंस में थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है इन चीजों के लिए। बट वो ये जो कॉमन चीज है, उसमें अगर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना है, तो अगर आप एमसीक्यूज कर लेते हो उस चीज के पढ़ के, पढ़ाई करके, आपका हो जाएगा प्रीलिम्स का प्रिपरेशन। और उसी चीज पे अगर पीवाईक्यूज लिख लेते हो मीन्स के, तो आपका कहीं ना कहीं मीन्स का प्रिपरेशन होता रहता है पैरेलली। तो ये ऐसे चलते रहता है। अगर स्पेसिफिक टाइम टेबल रखने की बात जब आती है, तो अगर आप फ्रेशर हो तो प्रीलिम्स थोड़ा ज्यादा टफ हो चुका है आजकल, तो इसलिए मतलब आई वुड से कि लास्ट के 4 महीने, मतलब अगर जून में प्रीलिम्स है तो लास्ट के 4 महीने आप रख सकते हो सोनली फॉर प्रीलिम्स। क्योंकि कैसा है ना कि मतलब मैंने मेंस का प्रिपरेशन बहुत किया, लेकिन मैं रॉ इंडिया में भी वही बताया था कि मेंस का प्रिपरेशन इतना किया कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। फिर ऐसे 2 बार ऐसे हुआ, तो वो गलती भी नहीं करनी, क्योंकि मेंस लिखना मिलना भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है। और मेंस अच्छे से लिख, मतलब एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपका फर्स्ट में हो रहा है प्रीलिम्स और फर्स्ट में मेंस लिख रहे हो, और अगर इनकेस मेंस नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपका वो एक्सपीरियंस आपको अगले अटेम्प्ट में काम आने वाला है। तो इसलिए प्रीलिम्स के लिए भी डेडिकेटेड 4 महीने रखने चाहिए। और बाकी जो टाइम है उसमें फिर आप आपका ऑप्शनल और आपका जीएस का प्रिपरेशन बैलेंस करना पड़ेगा अलोंग विद प्रीलिम्स। राइट। सर एक चीज और है, अगर मैं एज एन एस्पिरेंट अपने डेज याद करूं तो एक, अगर मैं सेल्फ स्टडी के लिए सोच रहा हूं तो आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा फंडा है। क्योंकि अगर कोई सेल्फ स्टडी से आंसर मीन्स तो अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का गेम है, और ओवरऑल अगर हम यूपीएससी को देखें तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं समराइज करूं पर्सनली तो मुझे लगता है कि लेखन कौशल का एग्जाम है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं जानते हो ठीक से, तो आप चाहे पर्सनालिटी में कितने अच्छे हो, आपका प्रीलिम्स कितना अच्छा है, आप नहीं बनोगे आईएएस। आंसर बराबर। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंसर लिखने से ही आपकी रैंक आती है। तो आंसर राइटिंग सेल्फ स्टडीज में कितनी इंपॉर्टेंट है प्रवीण सर? एक और, अगर कोई सेल्फ स्टडीज से मॉक टेस्ट भी लगा रहा है, तो उसको टेस्ट जाके लगा रहा है, लेकिन उसका इवेल्युएशन, उसका 1-to-1 डिस्कशन, वो कितना इंपॉर्टेंट है? तो प्रवीण सर इस पे आप थोड़ा लाइट अगर थ्रो करो तो। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे अभी शुभम ने भी बात की, तो वो अप्रोच तो बहुत सही है, इंटीग्रेटेड वाला। उसी में आंसर राइटिंग की भी बात हुई है। बट टू बी प्रिसाइज, आंसर राइटिंग में आपको ये समझना है, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखने हैं, है ना। चाहे वो आपको बहुत कुछ समझ में ना आए, क्योंकि आप अभी फ्रेशर हो, फिर भी आपको देखना है। दे आर द फुटफॉल ऑफ यूपीएससी। जब आप उनको देखते हो तो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाती है चीजें कि ऐसे सवाल पूछते हैं, ये मेरा एंड है, इसको मेरे को टैकल करना है। अब देखो, जब भी आंसर राइटिंग करते हैं ना, यूपीएससी ने कभी नहीं बताया कि हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर पर क्वेश्चन, ना यूपीएससी पेपर दिखाती है।
बट जो यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री है, उन्होंने जो टारगेट या उन्होंने जो बाय द टाइम उनके असेसमेंट के थ्रू जो सेट किया है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि स्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, इन तीन को आपको नंबर होते हैं। अगर आप ये तीनों भी मैच करोगे तो आपके नंबर आएंगे, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? तो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, सिंपल, ठीक है ना। इन तीन को हम मिला के स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मान लीजिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन में यूपीएससी कहता है कि 150 वर्ड्स, बट हमेशा याद रखिएगा कि 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स आर द हाईएस्ट वर्ड लिमिट, क्योंकि आप हर एक को इतना लिखोगे तो आपका आंसर क्वेश्चन पेपर ही फिनिश नहीं होगा, है ना। तो आपको तब कि क्वालिटी ऑलवेज प्रायर देन द क्वांटिटी, है ना। अब हर क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है। तो मैं समझता हूँ आउट ऑफ 150 वर्ड्स और 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 100 to 120 वर्ड्स आर मोर देन सफिशिएंट, बट द टर्म्स एंड कंडीशन इज कि वो कीवर्ड्स आने चाहिए, है ना। तो वो पेरिफेरल एंड कोर, इन दोनों की डिमांड समझ के उसको अलग करना आना चाहिए, है ना। सेम विथ 15 नंबर्स, जहां पे 180 वर्ड्स आर मोर देन सफिशिएंट, ठीक है ना, आपके नंबर उस पर नहीं कटेंगे। अब आते हैं इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। तो इंट्रो होना चाहिए गाइस अराउंड 25 to 30 वर्ड्स का, ठीक है ना, ये बाय प्रैक्टिस होगा, जो पैराग्राफ फॉर्म में होता है 25-30 वर्ड का। कंक्लूजन होना चाहिए 15 से 20 वर्ड का, ठीक है ना, कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। एंड 70-80 वर्ड की बॉडी होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको जो पूछा गया है वो इंट्रो में कभी नहीं बताना, आपको जो पूछा गया है वो बॉडी में बताना। इंट्रो में ये बताना है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है ना। कंक्लूजन आपको ऑप्टिमिस्टिक लिखना है, इसमें सेकंड ईयर से डाल दो, गवर्नेंस के लिए अगर पूछा है तो आपको कुछ प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट के वैल्यूज डाल दो, कुछ कीवर्ड्स डालो, है ना, कुछ स्कीम डाल दो, तो वैसे होता है। तो मुझे ये कहना है कि ये मैंने जैसे बताया ना, तो ऐसे मतलब वीकली बेसिस पे आपको अगर कोई बता रहा है ना, और आपने जो लिखा है उसको सामने रख के अगर आपको करवा रहा है, इफ यू अलाउ मी, तो मैं आपको कुछ पेपर दिखाना चाहूंगा। तो देखो मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट फीडबैक भी है और मेरे पास एक कॉपी भी है, ठीक है ना। हाँ, देखो अब ये क्वेश्चन है ना, ये सेम स्टूडेंट है जिसने बाद में आंसर लिखा है, सॉरी, ये सेम स्टूडेंट है जिसने बाद में आंसर लिखा है, जिसको हमने, हाँ, जिसको 3 नंबर आए हैं। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पे क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर आए हैं। ना आर्टिकल मेंशन किए हैं, ना प्रिविलेजेस को प्रॉपरली बताया है, ठीक है ना। और आर्गुमेंट अगेंस्ट में मिसयूज देखो लिखा है, हेडिंग तो डाली है बट पॉइंट फॉर्मेट में नहीं लिखा है, पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि बहुत सारी मिस्टेक है, ठीक है। प्रॉपरली समझ में बाद में आ जाएगा, मैं कॉपी आपको भेज दूंगा, जो अच्छी कॉपी है वो भेजने से मतलब है, ठीक है। अब इसको इस पेपर में कितना नंबर मिला है देखो, यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखो इनको इस पेपर में है ना, तो 76 मिले हैं। MEP 01 की कॉपी है, मेंस एसेंशियल प्रोग्राम 01 पॉलिटी एंड गवर्नेंस 76, ये इनकी फर्स्ट कॉपी है। तो जिन मैं समझता हूँ इनका ये खराब परफॉर्मेंस है ना। अब इनका अगर आप MEP 03 की कॉपी देखोगे तो MEP 03 हमारा इकोनॉमी का है, सेम स्टूडेंट शंभवी मिश्रा, ठीक है। आप इनका पेपर देखिएगा, 103 नंबर आए हैं। तो मेंस एसेंशियल प्रोग्राम 03 इकोनॉमी 103, जो कि मैं समझता हूँ पेपर 3 में बहुत अच्छे नंबर है, क्योंकि अभी तो बस ये लिख रहे हैं, वैसे तो हमारे 24 टेस्ट है ना, तो ये तो शुरुआत है। तो देखो अब यहाँ पे भी आप देखोगे गुड इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। फिर भी इनको लिखा है कि यू कैन डिवाइड द सबहेडिंग अंडर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंपैक्ट्स। यहाँ पे देख रहे हो आपकी इन्होंने कैसे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन डाला है, कैसे बॉक्सिंग की है, कैसे इन्होंने कीवर्ड्स डाले हैं, है ना। तो ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पहला वाला पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, ना ही उसमें डिमांड ऑफ क्वेश्चन कवर हो पा रही। तो मेरे कहने का मतलब बॉटम लाइन वही है कि आपको ना क्या करना है कि ईच एंड एवरी पेपर को बहुत सिंसियरली अटेम्प्ट करना है। और जैसे साकेत ने पूछा कि सर एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है, तो देखो मॉडल आंसर तो आपको मिलता ही है, वो तो आपको देखना है, बट वो आपको रेफरेंस है। मॉडल आंसर ऐसा नहीं है कि वो छापोगे आप तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बस वो गाइडलाइन होती है कि आपने इस तरीके से लिखना चाहिए, बट वो सेल्फ करने से नहीं होगा, क्योंकि आप खुद ही लिख रहे हो, खुद ही देख रहे हो, तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा। आपको कोई बताएगा कि जो उस चीज से गया है, जिसने खुद की इंप्रूवमेंट की है, जिसने बहुत सारे बच्चों को देखा हुआ है, या जिसने, जैसे शुभम सर हमारे सुपर मेंटोर है, वो खुद IPS है, उन्होंने अब फिर से वो इस बार भी वो लिखने वाले हैं, वो AS के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो उन्होंने खुद को प्रूव किया है, उनके नंबर्स GS में बहुत अच्छे हैं। तो अगर वो आपके सामने बैठ के वो आपको बताएंगे कि बेटा यहाँ गलती कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको एक ट्राइड एंड टेस्टेड
स्ट्रैटेजी मिल रही है, जिनके नंबर आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपका विद इन 1 ईयर आपकी रैंक आ सकती है। तो जो एक गाइडेड प्रिपरेशन में मानता हूँ। शुभम सर, आप कुछ ऐड करोगे इस पूरे डिस्कशन पर? नहीं, डेफिनेटली वही, मतलब जो कॉपीज देखी थी, मतलब जैसे प्रवीण सर ने कॉपीज बताई थी, तो वही है कि जब अपन स्टार्टिंग में मतलब आंसर राइटिंग देखो कॉलेज में की रहती है, और वो कॉलेज में कैसे की रहती है वो अपने को भी पता है सबका ही। लेकिन यूपीएससी की डिमांड थोड़ी अलग है, जहाँ पे आप कुछ भी नहीं लिख सकते। आपको जो अगर डिमांड के हिसाब से अगर नहीं लिखा तो फिर आप मतलब 150 वर्ड का लिमिट है, अगर आप पूरे 150 लिख रहे होगे तो भी आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे, अगर आपका डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होता है ना, आपको पता रहना चाहिए कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है। तो जैसे पहले कॉपी बताई थी, फिर उसके बाद में उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई थी, जैसे वो फीडबैक मिलता है, फीडबैक देख के फिर बच्चे जो इम्प्लीमेंट करते हैं, और अगर उसका कोई अगर फॉलो अप भी ले रहा है कि इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर ये सब होता है तो इवेंचुअली इम्प्रूवमेंट होगा। एंड अगर वही है कि अगर खुद से करते बैठोगे, एंड अगर मतलब वही है, मॉडल आंसर देखा तो जैसे प्रवीण सर ने बोला कि मॉडल आंसर देखने पे उतना समझता नहीं है, क्योंकि मॉडल आंसर बनाते टाइम बहुत मतलब कैसे होता है ना क्लासेस का, कि एक कंटेंट देते हैं अपन बच्चों को, और जिसकी वजह से मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है उनको मतलब अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। लेकिन जो आंसर लिखने का टाइम आ जाती है, तो मॉडल आंसर मोस्टली ऐसे 150 वर्ड्स के लिए 300 वर्ड्स का हो सकता है, लेकिन 150 वर्ड्स का आंसर लिखना अलग बात है। तो इसलिए 150 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए जिनका एक्सपर्टीज है उनका ओपिनियन काफी मैटर करता है। राइट। सर, एक चीज हम और देख रहे हैं, आप दोनों को कह रहा हूँ कि ऑप्शनल देखिए। ऑप्शनल अब एक टाइम पे बहुत डिसाइडर होता था, 300 प्लस आ रहे थे ऑप्शनल में। अगर अभी आंसरों को छोड़ दें अगर, तो कोई भी ऑप्शनल ऐसा नहीं है जो 250 या 270 से ज्यादा दे रहा है। वो 240 से 280 की रेंज, 280 तो बहुत ज्यादा हो गया, 240 से 260 की रेंज में ही अब ऑप्शनल को वो रोक रहे हैं। इट मीन्स कि जीएस की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है इस पूरे कमिंग पिछले साल के अगर हम कुछ ट्रेंड्स देखें, जीएस हैज बिकम द डिसाइसिव फैक्टर। तो अगर कोई सेल्फ स्टडी से कर रहा है, तो पहले तो फंडा क्लियर था, ऑप्शनल पे बच्चा बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहा था। अब वो जीएस पे कितना टाइम इन्वेस्ट करे, और वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही अगर वो करना चाहता है, तो वो कैसे इसके बारे में सोचे प्रवीण सर? हाँ, देखो इसमें बिल्कुल जीएस का 20-20 कंपेयर टू ऑप्शनल, ऑब्वियसली अभी डिमांड बढ़ चुकी है, क्योंकि आप जीएस में ना 420 425 नंबर भी ले आ सकते हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है। जैसे हमारे और एक सुपर मेंटर है, जैसे शुभम भी है, वैसे सोहम मांडरे है जो कल हमारे साथ थे, का क्लियर है, जैसे उन्होंने भी बताया कल कि सजल सर के मेंटरशिप के अंडर पहले उनको सेकेंड अटेम्प्ट के मेंस में 361 नंबर थे जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एंड जिस बार उनका सिलेक्शन हुआ उनकी रैंक 267 आई, तो उनका जीएस में स्कोर था 407। तो 46 नंबर का जंप मारा है। तो 46 नंबर बहुत ज्यादा होता है कि लिस्ट में आने तक भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली उनकी तो पढ़ाई, उनका हार्डवर्क तो है ही, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं 1%, 2%, 10% वेंडर का रोल होता है, जैसे सजल सर ने यहाँ पे उनको बताया। जैसे मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, आपने बहुत आपके क्वेश्चन पे आऊंगा मैं, साकेत की कितना टाइम देना चाहिए। बट देखो टूल किट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिसकी मैंने बात भी की थी। अब जैसे आईआर का क्वेश्चन है ना, तो अगर सोहम को सजल सर बताते हैं या फिर कोई मेंटर स्टूडेंट को बताता है तो क्या बताता है, नहीं पता। देखो अब जैसे आईआर का आंसर आप लिख रहे हो, किसी ने स्टूडेंट ने आईआर का आंसर लिखा, इंडिया के साथ XYZ कंट्री के रिलेशन कैसे हैं। तो जब भी आईआर का आंसर आता है तो आप लिखना चालू कर देते हो। फिर ठीक है, आप कोई एंगल नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, आपको बस पता है कि स्ट्रेटेजिकली लिखना है या डिफेंस वाइज लिखना है। तो ऐसा नहीं होता है। एक टूल किट है जिसमें 7 एंगल्स होते हैं, और आईआर का कोई भी क्वेश्चन आए तो याद रखना कि उस 7 एंगल्स पे ही आपका आंसर होना चाहिए। तो वो 7 एंगल्स कौन से है? पॉलिटिकल है, इकोनॉमिकल है, इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रैटेजिक है, डिफेंस है, कल्चर है, इकोनॉमी है। ये 7 आंसर्स हो गए। कल्चर है, साइंस एंड टेक है, सॉरी इकोनॉमी रिपीट हो गया, साइंस एंड टेक है। तो अगर आप इन 7 आंसर को छूते हो ना, तो एज एन एस्पिरेंट, दोज हु वांट टू बिकम इन सर्विस, तो पेपर चेकर को लगता है कि इसका नैरो नहीं है, ये इंटरलिंकिंग बहुत अच्छे से कर ले रहा है ना। ये साइंस एंड टेक भी सोचता है, पीपल टू पीपल पार्टिसिपेशन भी सोचता है, डिफेंस रिलेटेड भी सोचता है, स्ट्रेटेजिक भी देख पा रहा है। तो कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन जब हम जोड़ते हैं इंडिया के साथ, आप इसराइल देख लो, द रिलेशन विच इज नॉट इन पब्लिक, ऐसा हम कहते हैं। तो आप इस 7 एंगल पे बात करो, इसमें सब कुछ आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, आपके डिफेंस के रिलेटेड प्रोजेक्ट भी आएंगे, सब कुछ आएगा, इकोनॉमी भी आएगी। तो तब आपको नंबर मिलते हैं। तो आपको ना, देखो आपके पास नॉलेज बहुत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि नॉलेज नहीं है। टेलीग्राम ओपन करो, 1000 पेजेस मिल जाएंगे, कंटेंट, नॉलेज, वीडियोस की कमी नहीं है। आपको सिर्फ 9 मिनट मिलते हैं, 180 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन लिखने हैं।
तो आपको अराउंड 9 मिनट मिलते हैं, अगर 10 से 15 को एवरेज निकाले तो 7 मिनट्स एंड 10 मिनट्स, तो 9 मिनट मिलते हैं। तो 9 मिनट में आपको गंदे आंसर सब लिखते हैं, जो कम गंदा लिखेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कम गंदा लिखो, और कम गंदा लिखना है तो क्या करना है कि आपको होमवर्क करके जाना है, और होमवर्क करके जाना है तो आपको ये वेपन है, ये टूल किट आपकी वेपन है। इंट्रो एंड कंक्लूजन तो रट के रखो, हमने तो रट के लिए थे कि कुछ भी आया तो ये डाल दो, है ना। तो कंक्लूजन पे भी ये डाल दो, तो मतलब ऐसा रटा हुआ था, एकदम डाल दो, ऐसा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। वहां पे आपको सोचने का टाइम ही थोड़ी नहीं है, वहां पे तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है ना। शुभम भी बताएंगे उनकी जर्नी। तो अब आते हैं कि अब आते हैं कि प्री के टाइम पे भी कैसे आपको यूटिलाइज करना है। तो जीएस तो छोड़ना है ही नहीं, जीएस छोड़ना नहीं है, बस आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है। जैसे मैंने कहा बुनियाद, रैंप अप, बूस्टर, इस तीनों में तो आपका जीएस का प्रिपरेशन चलता रहेगा। जब आपका प्रीलिम्स का फेज आएगा, तो जैसे शुभम सर ने कहा कि 4 महीने का प्रीलिम्स का फेज होना चाहिए, दोज हु हैव नॉट क्वालिफाइड द प्रीलिम्स अर्लियर इन देयर अर्लियर अटेम्प्ट, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसके साथ आप एक काम कर सकते हो, इस 4 महीने अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी है, तो आप समाचार मंथन जो है प्रोग्राम हमारा, उसके आंसर लिख सकते हो। वो करंट अफेयर है, आपका करंट अफेयर भी पढ़ना हो जाएगा, और आप लिखने से आपकी प्रैक्टिस होगी, वो आपके दिमाग में बैठे। दूसरा, प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी, प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री वही है, वो तो नहीं बदल रहा। तो पॉलिटी का, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वही है। तो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, 15 डेज मान लो, प्रीलिम्स का पेपर दे दो, एंड उसी दिन दोपहर को जाके आप मेंस का पेपर लिखाओ ऑन द बेसिस ऑफ सेम नॉलेज जो आप प्रीलिम्स को यूज कर रहे हो, जिसको आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो, सिर्फ 3 आवर्स आप उस पर स्पेंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका वो टच नहीं छूटेगा। आप उसमें इथिक्स या पेरिफेरल पार्ट मत करो, आप उसमें वही पार्ट करो जो प्रीलिम्स को फायदा हो रहा है। पढ़ो भी प्रीलिम्स के हिसाब से, बस पेपर लिख के आ जाओ। तो आप दिमाग को वैसे समझा रहे हो कि मैं दोनों भी कर रहा हूँ। तो ये होता है इंटीग्रेटेड वे ऑफ स्टाइल ऑफ प्रिपरेशन। राइट। शुभम सर, अगर हम आपके ऑप्शन को हटा दें फॉर अ मोमेंट, तो जीएस में आपके जो मार्क्स इंप्रूव हुए, वो कितना बड़ा डिसाइडर था टू सो दैट यू गॉट इनटू द आईपीएस? नहीं, एग्जैक्टली। तो वही है, मतलब ऑप्शनल तो डेफिनेटली अच्छा था, लेकिन मेरे 386 आए थे और बाद में 408 हुए थे। तो वो साजिद सर से जब बात किया था मैंने, तो उसमें फिर मुझे वही है, जो एक स्ट्रक्चरिंग की बात होती है कि किसी भी आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करना है, उसमें जो भी सर ने टूल किट, प्रवीण सर ने टूल किट में बताया था कि आईआर में जो टूल किट है, वैसे काफी सारे टूल किट के मतलब मेथड्स है। जैसे सोसाइटी के लिए भी एक रहता है, क्वालिटी के लिए भी एक रहता है, गवर्नेंस के लिए रहता है, आईआर के लिए रहता है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे अच्छे से प्रिपरेशन हो जाता है, नोट्स अच्छे से रहते हैं, या फिर कहीं आपके मेंटर थ्रू या किसी थ्रू आपको अगर जब मिलता है ये सब कुछ रेडीमेड, तो फिर आपको डेफिनेटली उसका काफी फायदा होता है। राइट। सर, बहुत सारे एलिमेंट्स पे हमने बात कर ली। एक एलिमेंट और एक इम्पॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो करंट अफेयर्स है। बिकॉज ऑफ कोर्स प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स अलग होता है, मेंस का बहुत ज्यादा अलग होता है। दोनों का बिल्कुल प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड मैनर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यस, तो करंट अफेयर्स को लेके क्या सही स्ट्रैटेजी है जो 24 टारगेट कर रहा है? वो न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन पढ़े, और उसको कैसे पढ़े? प्रीलिम्स स्पेसिफिक पढ़े, मेन स्पेसिफिक पढ़े? नवीन सर, आपसे शुरू करते हैं इस पर भी। राइट। सो इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अभी से चालू कर रहे हो तो आप सिर्फ मेंस का करोगे या आप सिर्फ प्रीलिम्स का करोगे। ठीक है, तो मैं अभी सिविल्स डेली पे हमारा जो समाचार मंथन हम बनाते हैं उसको लेके बात करूंगा। तो मैं कहूंगा कि हम समाचार मंथन में क्लियरली आपको बताते हैं कि वहां पे लिखा होता है कि ये जो टॉपिक है तो ये सिलेबस के किस पॉइंट से मैच हो रहा है। तो आपको सिलेबस वाला ही पॉइंट मिल रहा है, कुछ बाहर का नहीं मिल रहा, पहली बात। दूसरा, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्या पढ़ना है, तो आपको डेफिनेशन पढ़नी है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे कुछ आ गया, एक एक आर्टिकल आ गया या एक न्यूज आ गई छोटी सी, तो उसको हम पकड़ के दिखाते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में है, तो सिलेबस में वो पॉइंट कहाँ पे है। प्रीलिम्स में डेफिनेशन कर लो कि एमपीआई क्या होता है, सिंपल। मेंस में आप कर लो कि इसके चैलेंजेस क्या है और ये काउंट कैसे की जाती है। हो गया। तो आपको जितना भी बड़ा आर्टिकल हो, चाहे आप वो बाहर इंटरनेट पे भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ध्यान में रखो कि आपको ये 3 ही चीजें करनी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन, मेंस चीजें से चैलेंजेस एंड वे अहेड या फिर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। हो गया। तो आपको हर टॉपिक को ऐसे ही देखना है। ठीक है, तो प्रीलिम्स एंड मेंस ये दोनों पर्सपेक्टिव कुछ अलग पर्सपेक्टिव नहीं है, आपको सेम जाना है। बस रिवीजन करते समय जब आप प्रीलिम्स का पेपर दोगे
तो आपको सिर्फ वही वही चीजें उठानी है। जब आप मेंस के लिए रिवीजन करोगे तो आपको एनालिसिस पार्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, फैक्ट पे थोड़ा कम भी करोगे तो दैट विल बी ऑल राइट। आप थोड़ा सा अराउंड फिगर लिख के आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि अगर नोट मेकिंग की बात की जाए, जो आप इंटीग्रेटेड नोट मेकिंग करते हो, तो उसके लिए मैं करंट अफेयर की बात करूंगा, क्योंकि साकेत ने करंट अफेयर पे पूछा है। तो कभी भी कोई भी न्यूज आती है जो हमारे एग्जाम के रिलेवेंट है, तो एक तो आप ऑनलाइन मीडियम यूज करो, वन नोट या एवर नोट वगैरह, जिसमें फास्ट होता है, फाइल्स बन जाती है, चीजें मेसअप नहीं होती। दूसरी बात, आप वहाँ पे टाइप करके लिखोगे तो बेटर है। डायग्राम वायग्राम आप ले लो, समाचार मंथन से हो या गूगल से हो। एंड ऑब्जेक्टिव सबसे पहले लिखो कि कुछ भी चीज पढ़ रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे एमजी नरेगा है, उसके बारे में आ गया, तो नरेगा का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद में उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखो, है ना। इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखने के बाद 3 या 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिखो, उसके बाद उसके प्रॉज लिखो, फिर कॉन्स लिखो, है ना। प्रॉज एंड कॉन्स होने के बाद आप उसका क्रिटिकली एनालाइज करो, देन गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन एंड वे अहेड या वे फॉरवर्ड। अब वे फॉरवर्ड में होता है इमीडिएट मेजर्स एंड दूसरा होता है सस्टेनेबल मेजर्स। ये दो लिखो एंड एंड ऑफ में वन लाइन का कंक्लूजन, राइट। राइट, ऐसे। राइट। शुभम सर, आप बताओ कि मेंस कोई करंट अफेयर्स को लेके क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि मेंस का जो GS2 और GS3 रहता है वो काफी हद तक पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही आता है। थोड़े एक दो स्टैटिक के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो भी जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं उससे रिलेटेड स्टैटिक होता है, मतलब मोस्टली। तो उसके लिए करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसमें पर्सनली मैं क्या करता था ना, मैं एडिटोरियल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करता था। मतलब अगर न्यूज़पेपर भी उठा रहे हो तो सबसे पहले एडिटोरियल्स पढ़ो, और नोट्स मेकिंग की जो बात आती है तो मैं एडिटोरियल्स के ही नोट्स बनाता था। मतलब जैसे सर ने बोला है वैसे भी चलता है, क्योंकि अगर टाइम है काफी तो फिर आप प्रीलिम्स और मेन स्पेसिफिक दोनों भी नोट्स बना सकते हो। लेकिन मैं डिपेंड करता था क्लासेस के नोट्स पे, जो कि मंथली मैगजीन होते हैं, या फिर डेली डेली करंट अफेयर्स का जो भी आता है, समाचार मंथन में आता है, या आप जो भी इंस्टीट्यूट फॉलो करते हो जिनका भी आता है। तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं क्लासेस पे डिपेंड करता था ज्यादा। और जो मेंस ओरिएंटेड करंट अफेयर्स है जिसमें एनालिटिकल स्किल्स लगते हैं, आपका खुद का थॉट प्रोसेस लगता है, आपकी जो एनालिटिकल एबिलिटीज रहती है कि आप सोच पा रहे होगे जो सामने वाला लिख रहा है एडिटोरियल में वैसे है। तो ये सब के लिए मैं मेंस के लिए एडिटोरियल्स पे काफी फोकस करता था, तो वैसे भी कर सकते हैं। राइट। हमने बहुत सारे थीम से बात कर ली है, ऑप्शनल आंसर राइटिंग, सिलेबस, करंट अफेयर्स। एक लास्ट थीम रह गई है, एसे और एथिक्स। आप देख पा रहे होंगे कि एसे भी अब फिलोसॉफिकल होता जा रहा है। एसे इज नॉट द सेम एसे एनी मोर दैट इट यूज्ड टू बी फ्यू इयर्स बैक। और आपका एथिक्स तो इस साल तो बिल्कुल ही सरप्राइज था। सेक्शन ए वाज कंप्लीटली सिचुएशनल, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। 5-5 लाइन के तो क्वेश्चंस ही थे, तो बच्चा कब पढ़ेगा, कब आंसर लिखेगा। केस स्टडीज क्या ऑर्डर चेंज कर दिया। तो सर ये एसे और एथिक्स की प्रिपरेशन जो गेम चेंजर होती थी, बट उसको भी थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने यूपीएससी ने। तो प्रवीण सर, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, 24 में बच्चे को, एस्पिरेंट को एसे और एथिक्स को लेके क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। राइट तो देखो गाइस, स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि मोस्ट निग्लेक्टेड एरिया है ये, जिसपे अभी सवाल पूछा गया है। 250 नंबर का एसे है, 250 नंबर का इथिक्स है। ये 500 नंबर को हम कुछ नहीं करते, इंक्लूडिंग मी। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत कुछ नहीं किया। एंड सेम 500 नंबर अगर आप ऑप्शनल के लेते हो तो आप इस पे बहुत सोचते हो। लाइक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड पे भी आप कहीं ना कहीं पढ़े हुए रहते हो, कोचिंग कर लेते हो, क्रैश कोर्स कर लेते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो, एंड मोस्ट ऑफ योर पार्ट आप उसमें डिवोट करते हो, जो कि गलत नहीं है। बट बॉटम लाइन है कि प्लीज डोंट निग्लेक्ट इथिक्स एंड एसे, क्योंकि इथिक्स आजकल, पहले ऐसा था ना कि पहले आप कुछ भी लिखो नंबर आते थे। मतलब ऐसा क्यों था, क्योंकि नया था वो सब्जेक्ट, 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो नया था सब्जेक्ट। तो उसमें क्या था कि आइडिया नहीं था, किसी के पास रिसोर्सेस नहीं थे, किसी के पास क्या लिखना था पता नहीं था। तो अपने मन वाले डेफिनेशन या जो आपको समझ में आए वो लिखोगे, तब भी आपको कंपेरेटिवली ठीक नंबर आएंगे, या फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी सबके पास है। अब सबको पता है कि उसकी भी टूल किट्स बन चुकी है, इन शॉर्ट। तो आपको पता है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। तो इथिक्स पे हमें अब वही कन्वेंशनल अप्रोच यूज करके नहीं चलना होगा, कि जैसे साकेत ने भी कहा कि पेपर्स अब आजकल बहुत लेंदी आ रहे हैं। आप 21 का या 22 का पेपर देख सकते हो, सिचुएशनल बेस है। केस स्टडीज भी बहुत अलग है। अभी तो बहुत मोनोटोनस आई थी, मतलब बच्चों का पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ। मे भी होता इनफैक्ट, तो सच में बहुत डिफिकल्ट था पेपर कंप्लीट करना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, तो आपको इथिक्स को निगलेक्ट नहीं करना है।
तो करंट अफेयर, जैसे शुभम सर ने भी बताया कि करंट अफेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में। मेंस इज इक्वल टू करंट अफेयर, 60-70% करंट अफेयर ही है, ठीक है। तो इथिक्स में कैसे यूज करें, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, एक मैंने देखा है प्रॉब्लम कि पेपर 2 एंड पेपर 3 इनके लिए हम करंट अफेयर पे बहुत निर्भर होते हैं, लेकिन हम ये सोचते ही नहीं है कि सोसाइटी, कल्चर एंड इथिक्स, इनमें भी करंट अफेयर जो डेली पढ़ते हैं ना वो आ सकता है ना। तो जैसे मैं बताता हूँ, अब जैसे दो साल पहले कुछ न्यूज थी, कलकत्ता का फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया था, ठीक है ना। तो मेरी आदत थी कि मैं ऐसी छोटी सी नोटबुक थी, मैं ऐसे छोटी नोटबुक ना इथिक्स के लिए बना लेता था, इतनी सी थी, 30-40 पेज की, और सेम मेरी ऐसे के लिए थी। तो मैं क्या करता था कि यार कलकत्ता फ्लाईओवर कोलैप्स हो गया, लेमैन पढ़ता और बोलता कि हाँ अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, सिंपैथी फील करता जो मर गए, एंड आगे बढ़ता। बट आप एस्पिरेंट हो, आपने ये करना है कि यार ये मैं एग्जाम्पल तौर पे कैसे यूज कर सकता हूँ। तो कलकत्ता फ्लाईओवर कोलैप्स, इसमें लाइक प्रोफेशनल इथिक्स एंड वर्क इथिक्स की बात करो कि ईएसआई हुआ था क्या, प्रोफेशनल इथिक्स हुए थे क्या, इंजीनियर के प्रोफेशनल इथिक्स कहाँ गए, है ना। उसने वो उनके सुपीरियर या इंफीरियर ने वर्क इथिक्स फॉलो किए थे क्या, मटेरियल कौन सा यूज किया था, एक्सपायरी कितनी थी, क्या क्या चीजों का केयर करा क्या, क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे जो लाइव एग्जाम्पल है ना, ये आप पेपर में डालो। तो फिर जब भी आपको ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी टुवर्ड्स योर वर्क, वर्क इथिक्स, इसकी बात आती है, तो आप मेंशन करो कि रिसेंटली कलकत्ता फ्लाईओवर हैज बीन कोलैप्स वेयर a lot of lives has been like lot of people has been killed, the labor has been killed। तो इसमें जो एक जो हादसा नहीं है, मर्डर है, तो फिर क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर की गलती है, तो आप यहाँ पे दिखाओ। तो क्या होता है ना, आपको कुछ और नहीं करना, बस आपको अप्रोच चेंज करना है ना। तो मैं हर चीज को ऐसे लिखता था, और आपको इस लिखने के लिए आपको इथिक्स के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो आप, मैं कहूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट आप पढ़ लो, उसके बाद साइमल्टेनियसली आप इथिक्स के नोट्स बनाते रहो। सेम गोज विद एस्से। एस्से को शुभम सर ने बहुत अच्छा कहा कि एडिटोरियल को फॉलो करता था। मुझे भी लगता है कि एडिटोरियल आर बेस्ट वे टू प्रिपेयर यूर मेंस, है ना। और समाचार मंथन को हम एडिटोरियल से ही लेते हैं। हम बट ये है कि हम सब कुछ लेते हैं, द हिंदू, एक्सप्रेस, लाइव मिंट, पीआरएस, पीआईबी, सब कुछ उठाते हैं। तो आप वो कर सकते हो। फिर वहां पे आपको क्या करना है ना कि कुछ भी कोट है, अब जैसे वुमेन पे आर्टिकल है, तो वो बीच में 2-3 लाइन देते हैं, जो कोट होता है इतना सही होता है ना कि वो पूरे 2000 वर्ड का क्रक्स होता है। तो आप उसको उठा लो एंड उसको आप ऐसे में यूज करो, है ना। तो ऐसे कोर्स के लिए आप एक अलग ये बनाओ, डायरी बनाओ, एंड इथिक्स के एग्जाम के लिए आप, एग्जाम्पल के लिए आप अलग डायरी बनाओ। राइट। और शुभम सर, आप तो इस साल अटेम्प्ट भी देने वाले हो, और आप 2 साल से एसए और एथिक्स के पेपर को देख भी रहे हो, तो ऑफ कोर्स अब आपकी खुद की जो स्ट्रैटेजी है वही स्ट्रैटेजी बता दो अपने एस्पिरेंट्स को भी। देखो यार, मतलब वही है, मुझे काफी सेटबैक हुआ था, मतलब मिला था जब मैंने इसे निगलेक्ट किया था। तो जो वही होता है ना, क्या होता है ना, अपन जब वैसे यूपीएससी लेवल पे लेते हैं मेंस को, तो वही है, जैसे प्रवीण सर ने कहा था कि ऑप्शनल अच्छे से करेंगे, बाकी करंट अफेयर्स करेंगे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 करेंगे, एक टाइम पे एथिक्स भी कर लेंगे। लेकिन इसे को काफी निगलेक्ट कर देते हैं बच्चे। और फिर जो मैंने खुद ने किया, तो फिर जो क्या होता है, जब हम फर्स्ट टाइम मीन्स लिखने जाते हैं, तो वो प्री क्लियर होने के जो एक महीने बाद रिजल्ट लगता है, तो उसके बाद 2 ही महीने रह जाते हैं। तो वो 2 महीने सफिशिएंट नहीं है आपको इस में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इसलिए आपको साल भर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उसका साल भर आपको कहीं ना कहीं फॉर्डर कलेक्ट करना है न्यूज़पेपर से। तो वो एक मैं कर रहा हूँ आजकल, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, फिर जो भी मुझे अच्छा लगता है न्यूज़पेपर में वो निकाल लेता हूँ। कुछ सब्जेक्ट, मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो बहुत ही है, जैसे मतलब कुछ सबल्टन एस्पेक्ट से दिया रहता है, तो वो काफी वैसा का वैसा यूज कर किया जा सकता है। जो एग्जाम्पल्स है, कुछ कुछ केस स्टडीज है, ये सब निकाल लेना चाहिए न्यूज़पेपर में से। तो वो एक कर रहा हूँ। और इथिक्स के लिए भी सेम, मतलब जो मैंने बोला था कि जीएस 2, जीएस 3 के लिए करंट अफेयर्स अपन काफी अच्छे से करते हैं, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब करंट अफेयर्स जीएस 2, जीएस 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे प्रवीण सर ने कहा, इथिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आपका एग्जाम्पल्स का कलेक्शन। तो जैसे मतलब काफी छोटी चीज है, जैसे आपका अगर सिलेबस पे कमांड होगा ना, तो आप मतलब फिर कुछ भी कर सकते हो। और मतलब आप जो भी आपके डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, वो तो कहीं से भी आपको एग्जांपल्स मिलते जाएंगे। जैसे कल मैं आईपीएल का मैच देख रहा था, तो दिल्ली वाले लोगों ने डग आउट में ऋषभ पंत की जर्सी लगाई थी ऊपर। तो वो एक टीम स्पिरिट की बात आती है, जो आपका टीम के लिए कितना एफर्ट है, आप आपके पार्टनर को मिस कर रहे हो जो आपके लिए खेलता है, या फिर जो स्पोर्ट्समैनशिप की बात आती है। जब फिर ये सारी चीजें पेपर में पूछेंगे, तो आप वो एग्जांपल लिख सकते हो। तो इसलिए सिलेबस पे कमांड रहना सबसे पहले रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आपका जो भी चल रहा है, कहीं से भी एग्जांपल उठा सकते हो, फिर उसके लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड जितने यूनिक एग्जांपल्स लिखोगे, उतने आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, थोड़ा डेली लाइफ में भी थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। तो उसके आपके पर्सनल लाइफ से जो एग्जांपल्स निकलेंगे, एथिक्स के लिए भी, ऐसे के लिए भी,
तो वो काफी क्रूशियल रहेगा और आपका पेपर काफी अलग बनाएगा लोगों से। और यूपीएससी को वही चाहिए, फिर जितना आपका यूनिकनेस है उतने आपके आपके अच्छे मार्क्स। Right. So now we'll open the floor to questions. Before that, शुभम सर खुद एस्पिरेंट अभी हैं, वो उनको तैयारी करनी है और उनका टाइम बहुत बंधा हुआ है और वो अपना टाइम निकाल के आए हैं हमारी हेल्प करने। तो थैंक यू सो मच शुभम सर, आपने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस हर चीज पे दी। और क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चंस प्रवीण सर लेंगे। प्रवीण सर आपके सारे क्वेश्चंस, आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे। एंड आई थिंक शुभम सर विल टेक आवर लीव। तो थैंक यू शुभम सर फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। बिजी है सर, का प्रीलिम्स पास है और सर को आईएएस बनना ही है। आई एम वेरी श्योर ये बनने वाले हैं आईएएस। मैंने इनका रॉ एंड रियल किया हुआ है और मैं अगले साल, इन्होंने ही मुझे कहा है कि आईएएस बन के फिर से रॉ एंड रियल करेंगे मेरे साथ। तो शुभम सर आप जाओ भाई, आईएएस वाईएएस बनो आप। Great. Yes, Thank you so much, Shubham. Thank you for the valuable time you have put in. yeah, thank you so much, Praveen sir, and thank you, Saket sir, for Yeah. hosting this. And we'll definitely catch up some other time on CD. So Right. all Yes, the yes, best yes. for everyone. स्टूडेंट्स को बताना Thank चाहूंगा you. कि यस, स्टूडेंट को एक लास्ट लाइन बताना चाहूंगा कि शुभम सर सुपर मेंटोर भी है, तो आप इनको भी कांटेक्ट कर सकते हो भाई। हम सिविल्स दिल्ली को आप कांटेक्ट करो हेलो पे, वहां से आप शुभम सर को डाइवर्ट किए जाएंगे। Right. Definitely. चलो अब क्वेश्चन Thank आंसर you. स्टार्ट Okay. करते हैं। थैंक यू गाइस। Thank you so much, sir. ठीक है, तो Thank you. प्रवीण सर Thank you. पहला क्वेश्चन है कि ऑफ कोर्स इंट्रो और कंक्लूजन की टूल किट कैसे बनाए, जो टूल किट पे हम बात कर रहे हैं बहुत टाइम से। तो और उसके साथ ही आंसर राइटिंग भी कैसे करें। तो ऑफ कोर्स ये वही बच्चा है, वही एस्पिरेंट है जो 24 को टारगेट कर रहा है अभी। देखो, हाँ, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस नहीं है। इट इज नॉट वन डे प्रोसेस कि मैंने आपको जड़ी बूटी दे दी आपने खा ली, ठीक है ना। बिल्कुल टूल किट हमारे पास है। जैसे शुभम ने भी मेंशन करा कि आईआर की अलग टूल किट है जो मैंने बताई। सेम गोज विद गवर्नेंस, सेम गोज विद एवरी टॉपिक ऑफ द मेंस सिलेबस। ओके, इवन एसए की भी टूल किट है। अब इंट्रो की बात करें तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि आपके पास इतना कैपेबिलिटी होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस आपने करनी चाहिए कि 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं जीएस में और 10 क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं जीएस में। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आपको 10 डिफरेंट वे आने चाहिए टू राइट द सेम इंट्रोडक्शन, टू राइट द इंट्रोडक्शन फॉर द सेम क्वेश्चन। ओके, तो डेफिनेशनल अप्रोच एक अप्रोच हो गया कि जो एक इंट्रोडक्शन का अप्रोच है, जो एक कंटेम्पररी और एक कन्वेंशनल अप्रोच है, हम यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेशनल अप्रोच, बट अब डिपेंड करता है कि क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर आप डेफिनेशनल अप्रोच यूज करोगे। ऐसा नहीं कि जो पेरिफेरल है उसको पकड़ के आपने डेफिनेशन बता दी, है ना, वो बैड प्रैक्टिस आएगा, वो डिस्कशन से आएगा। डेफिनेशनल अप्रोच। देन एक होता है फैक्चुअल अप्रोच, है ना। तो फैक्चुअल अप्रोच क्या होता है ना कि जब आपको पूछा जाए, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन ले लूं, हाँ, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकोनॉमी। ओके, सो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। या आप ले लो थोड़ा सा डीप में जाके, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो अब यहाँ पे मैं अगर कोविड-19 की डेफिनेशन या इंडियन एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन दूं तो वो गलत रहेगा, क्योंकि वो पूछा नहीं जा रहा है। आपको इम्पैक्ट पूछ रहे कोविड का एम्प्लॉयमेंट पे। तो आप कैसे समझाओगे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है? आप समझाओगे डेटा, फैक्ट्स। तो आप बताओगे कि कोविड के पहले, मतलब कोविड आया था 2020 में, तो फरवरी 2020 में जब कोविड आने ही वाला था, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इंडिया का था 9.4%। ओके, सिर्फ 9.4। एंड जब कोविड का फेज 1 चला गया तो अक्टूबर 2020 में कोविड का अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो था इंडिया का 24.6%। सो ये नंबर ही बताते हैं कि 9 से 24 इतना परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ कोविड, जस्ट इन फ्रैक्शन ऑफ 6 मंथ, सॉरी। तो हो गया। तो आपने इंट्रो में बता दिया कि सर मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा है। अब आप बॉडी में सुनो कि आंसर क्या होना चाहिए, तब आप बॉडी में लिखो कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो आप सब एंगल बता दो उनको, जो एंगल है। और सेम विद कंक्लूजन। कंक्लूजन की बात रह गई। कंक्लूजन 15 से 20 वर्ड का होना चाहिए अराउंड। एंड वहां पे आपने ना, वहां भी अलग अलग टेक्निक होती है। ज्योग्राफी में कंक्लूजन ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, तो होता है तो स्टैटिक होता है, ठीक है ना। सोसाइटी में फिलोसॉफिकल कंक्लूजन होता है, जहां पे कुछ वर्ड्स, कुछ गांधी जी को ले आना है, नेहरू जी को ले आना है, या कुछ मदर पे वगैरह कुछ अगर आपके कोट बने हैं तो वो डालने हैं,
कुछ आपको ऐसा यूज करना है जो फिलोसॉफिकल हो, जो थोड़ा सा इमोशनल हो, ठीक है ना, तो वो डालना है। जैसे गरीबों के आंसू पोंछने वाली बात हो गई, तो वो कंक्लूजन में आना चाहिए कि टू इम्प्लीमेंट द पर्टिकुलर स्कीम विच दे हैव आस्क्ड इन सोशियोलॉजी और सोसाइटी। इथिक्स में भी आपको फिलोसॉफिकल कंक्लूजन डालना है, ठीक है ना। अदर वे में पेपर 2 और 3 में आपको आपके चीजें यूज करनी है, जैसे पैसा एक्ट हो गया, सेकंड एआरसी हो गया, गवर्नेंस की बात है तो सेकंड एआरसी, पंचायत राज का है या ट्राइबल का है तो पैसा एक्ट डाल दो। प्रीएम्बल तो आप प्रीएम्बल की वैल्यूज तो आप हमेशा घुसा सकते हो जहां जहां आपको लगे, ठीक है ना। एसडीजी वैल्यूज आप डाल सकते हो जब एनवायरमेंट की बात हो रही है, पॉवर्टी की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। तो आपको ऐसे बैठ के ना चीजें करनी होगी। ऑब्वियसली मेंटर तो है ही, मेंटर तो करेंगे, करवा लेंगे, बट ये टूल किट आपको यूज करती रहनी है, तब ऑटोमेटिकली आएगी। राइट सर, जागृत वांट्स टू जॉइन द फाउंडेशन 2024 विद सुपर मेंटोरशिप। तो जागृत, मैंने आपको एक फॉर्म सर्कुलेट कर दिया है, आप उस फॉर्म पे अपना डिटेल दे देना, हमारे मेंटोर्स आपसे कनेक्ट कर लेंगे। राइट सर, एक क्वेश्चन है सागर का। सागर जो है वो इंटर्नशिप में है अभी, और उनको सिर्फ 1 से 3 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो मेंटली यूपीएससी की तैयारी 2019 से ही कर रहे हैं, कॉलेज से ही कर रहे हैं। उनकी बुक लिस्ट फाइनल है, उनके एनसीईआरटीज डन है, और वो स्टेज पे हैं जहाँ उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फाउंडेशन की, क्या होता है, कैसे होता है। बस वो यही पूछ रहे हैं कि क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट वो देना चाहते हैं 2025 में। सो इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू क्रैक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट जस्ट बाय गिविंग 3 आवर्स एवरी डे फॉर 18 मंथ्स? अगर वो 18 महीने सिर्फ 3 घंटा डेली पढ़े, तो क्या वो 2025 का अटेम्प्ट निकाल सकते हैं थ्रू सेल्फ स्टडीज? और उसके लिए उनको क्या जॉब छोड़ने की, अपनी इंटर्नशिप या आगे जो जॉब बनेगी वो छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत टाइम दे नहीं पा रहे हैं? राइट, देखो मैं इनको कहूंगा सागर को कि जॉब तो बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है ना, क्योंकि आई थिंक वो 24 कहना चाहते होंगे, क्योंकि 18 मंथ तो मेंस 24 को बचे हैं, 25 को तो और ज्यादा बचे हैं, बट ठीक है जो भी 24 या 25, मैं तो कहूंगा मैं 24 को लेके चलता हूँ। तो आप अगर इसी दिशा में जा रहे हो, आप 3 आवर्स निकालो, देखो 1 आवर बहुत कम होता है, 3 आवर्स निकालो, आपको थोड़ा सा एक्सेप्शनल चीजें करनी होगी टू गेट द एक्सेप्शनल रिजल्ट। अगर मुझे अच्छी लाइफ करनी होगी तो मैं कुछ अच्छा अलग करूंगा तो ही अच्छी लाइफ होगी, तो सेम गोज विद दैट। तो आप 3 घंटे निकालो, हमारा तो स्पेशल प्रोग्राम है मेंटरशिप में, हम ये क्लेम करते हैं कि 4 to 5 आवर्स इन अ डे फॉर अराउंड 1.25 years will make you to which will make you able to crack the mains, है ना। तो 3 घंटे जुडिशियस प्रिपरेशन करना है, रिलीजियसली प्रिपरेशन करना है, जिसमें आपको एक 30-35 मिनट समाचार मंथन पढ़ना है, 20 मिनट्स का आपको एक आंसर लिखना है, ओपन बुक टेस्ट, ये हो गया 1 आवर। उसके बाद आपको बचे हुए 2 आवर्स में आपको 1.5 आवर आपको 4 सब्जेक्ट 1 पढ़ना है, एंड हाफ एन आवर में आपको रिविजन करनी है। तो 3 घंटे में ये आपको करना है। और आप, मैं तो कहूंगा कि जो बचा हुआ आपका टाइम है इंटर्नशिप का, उसमें आप लंच करते होंगे, स्नैक्स खाते होंगे, चाय पीते होंगे, तो आपके सामने सिलेबस रखो, आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का टेबल रखो, आपके सामने कुछ तिकड़म वाली चीजें रखो, जो आप, देखो आप नहीं भी काम कर रहे हो यूपीएससी के लिए तो आपका अनकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है, तो आप उनको दिखाओ कि ये सिलेबस है। तो ये आपको ना उस 3 घंटे में आपकी और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाएगा और आपका काम होते रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें मगअप होती रहेगी, जिसको आपको सेपरेट टाइम देने की जरूरत नहीं है। जब संडे आएगा तो संडे आप इस चीजों को रिवाइज कर लो और कोई टेस्ट देके देखो। राइट तो जॉब मत छोड़ना और 18 मंथ प्रॉपर प्रिपरेशन करना। राइट गौतम, जो आपने लिखा है क्वेश्चन बहुत बड़ा, उसका आंसर यही है कि नहीं, उससे कोई हर्डल क्रिएट नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। आप सही जा रहे हो। मुस्कान सर पूछ रही है कि अगर वो अपना ऑप्शन अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अलग लेती हैं तो क्या उनके इंटरव्यू पे कोई बैड इम्पैक्ट आएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये बहुत ही गलत सोच है, बहुत बच्चों की है, ऐसा नहीं आपकी। देखो ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है एज द नेम सजेस्ट। यहाँ पे आपको पूरा राइट है कि आप कोई भी ऑप्शनल चूज करो आउट ऑफ 21 ऑप्शनल्स। तो उसमें कुछ पैरामीटर है जो एज अ मेंटर हम बताते हैं, जो मेंटर आपको डिसाइड करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो आप कोई भी ऑप्शन ले लो, उसका बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है और इंटरव्यू पे बिल्कुल गलत इफेक्ट नहीं करता। आप सिंपल इसका अगर आपको पुष्टि करनी है तो टॉप 100 रैंकर किसी भी साल के उठा लो, मैक्सिमम टॉप 100 रैंकर आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी के हैं, और इनका कॉमन ऑप्शनल रहा है ह्यूमैनिटी। राइट और अभी आपको मैं सूट में इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं, और 300 से ज्यादा मॉक इंटरव्यू करा लिए हैं, और मैंने इतने सारे एस्पिरेंट्स को हमने गाइड किया है सिविल दिल्ली की टीम ने कि हम सबके ऑप्शनल अलग हैं ग्रेजुएशन से, मोस्ट ऑफ देम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अच्छे रैंकर बनने वाले हैं, आप देख लेना। ठीक है, तो सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पूछ रहे हैं कि कैन यू रफली
कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, नहीं सर, मैंने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है सिलेबस को लेकर। बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है शायद, बट अभी पढ़ाई स्टार्ट की है तो आपको एक अच्छे मेंटर की जरूरत है जो आपका टाइम बचाए। A person who is studying by self will take around 10 hours per day. Still, he will not be able to confident on his or her studies, जैसे आप हो. Or a person with mentor will able to crack the exam or study in confident manner if he'll able to study only for 4 to 5 hours, right? So it's all about confidence. It's all about faith. तो आपको faith के लिए एक mentor चाहिए एंड वो आपका टाइम रिड्यूस कर देगा। फिर आप 4 घंटे भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ काम की चीजें कर रहा हूँ। तो और अगर आपको मेंटर तो आपके पास अभी तो आपको करना ही चाहिए। दूसरा, उसके अलावा मेरी तरफ से आपको ये सलाह है कि सबसे पहले आप जो है स्क्रैच से जाओ, सिलेबस को देखो, upsc.gov.in इस पे आप जाओ, सिलेबस देखो, प्रॉपरली सिलेबस आप रीड करो, उसको पेस्ट करो, डेली इसको पढ़ते रहो, ईच एंड एवरी कीवर्ड को देखो। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, प्रीलिम्स एंड मेंस के लास्ट 5 ईयर्स के, इसको आप अच्छे से स्टडी करो फॉर 3 to 4 days। उसके बाद आप ऑप्शनल डिसाइडिंग पे आओ, ऑप्शनल डिसाइड करो, उसको 1 वीक ले लो। 1 वीक ऑप्शनल डिसाइड करने में लग जाता है, मेंटर की हेल्प ले लो। हेलो पे आप पूछो, साकिब सर से पूछो, वो आपको मेंटर से कनेक्ट करवाएंगे। ये करो। उसके बाद आपको आपके एनसीईआरटी से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? और जो जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते उसको आपको वीडियो का सपोर्ट लेना है। तो इट्स अ प्रोसीजर, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, शांति से करो। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड वाले बच्चे बहुत आसानी से हो रहे हैं, टेक्निक की जरूरत। राइट। प्रवीण सर, एक क्वेश्चन और है अभिमन्यु का। ही सेज कैन यू रफली टेल सेंटेंस और लाइन वाइज लिमिट ऑफ 10 to 15 मार्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, एज वर्ड वाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ काउंट इन लिमिटेड टाइम। अच्छा, देखो हम वर्ड में क्यों बात करते हैं ना, क्योंकि हर हर स्टूडेंट का स्टाइल ऑफ राइटिंग अलग अलग होता है। जैसे मैं मान लीजिए छोटा लिखता हूँ, आप बड़ा लिखते होंगे, है ना? तो अगर मैं फिर भी अगर मैं आपको अगर सुनना है तो यूपीएससी की जो शीट होती है ना, तो यूपीएससी का एक शीट में मार्जिन छोड़ी होती है दोनों साइड में। तो अगर यूपीएससी की स्टैंडर्ड मार्जिन की बात की जाए, और मैं सोचता हूँ कि उसी पे हमने आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो वो 2 पेज देते हैं 10 नंबर के लिए, राइट? 2 ब्लैंक पेजेस आगे और पीछे, और वो 3 पेज देते हैं 15 नंबर के लिए, आगे पीछे और दूसरे पेज का आगे वाला पार्ट। तो 3 पेज, तो क्वेश्चन प्रिंटेड होता है। तो 2 पेज उनके हिसाब से काफी है 150 वर्ड्स के लिए। और मुझे भी लगता है कि एक पेज में अराउंड 80-90 वर्ड आ जाते हैं, और दूसरे पेज पे 80-90 वर्ड, तो लगभग 150-170 वर्ड्स 2 पेज में बैठ जाते हैं अगर आपका एक एवरेज आंसर राइटिंग। फिर भी आप आंसर लिख, ये सब लोग करते हैं, यूपीएससी में करना चाहिए कि आप खुद का आंसर लिखो, वर्ड गिन के ऊपर वर्ड लिख लिया करो। ऐसे प्रैक्टिस होने के बाद आपको बाद में वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो अगर कैन यू रफली टेल सेंटेंस और लाइन, तो देखो सेंटेंस मतलब अब जैसे मैंने कहा इंट्रोडक्शन 25 से 30 वर्ड का होना चाहिए, तो 3 to 4 लाइन्स का होना चाहिए। एक लाइन में अराउंड 6 वर्ड्स में यूज करता हूँ, 6 to 7 वर्ड्स मैक्स, 5 to 7 डिपेंड है वर्ड भी कितना लंबा है, ठीक है? तो 3 to 4 लाइन्स फॉर इंट्रो, 2 to 3 लाइन्स फॉर कंक्लूजन। बॉडी के लिए आप एक 80 वर्ड है तो 12 to 15 लाइन्स। राइट सर, जागृत ने अभी हमारा फॉर्म फिल किया है एंड ही वांट्स टू नो हाउ द फाउंडेशन कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कोर्सेज। इज द राइटिंग, आंसर राइटिंग, रैंकर्स, बूस्टर, समाचार मंथन प्रोग्राम इंक्लूडेड इन द फाउंडेशन, और या उसको सेपरेटली लेना पड़ेगा? तो देखो जागृत, फाउंडेशन में सब कुछ है। फाउंडेशन इटसेल्फ अम्ब्रेला टर्म, फाउंडेशन 2024 या फाउंडेशन एसएमपी हम इसको कहते हैं, फाउंडेशन सुपर मेंटरशिप 2024। इसमें सिर्फ आपको क्लासेस नहीं मिल रही है, आपको मास्टर क्लासेस है, इसके नोट्स है प्रिंटेड, प्लस आपको मेंटरशिप है फॉर 18 मंथ्स, आज से मेंस 24 तक। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एसए हो, ईच एंड एवरी टेस्ट का डिस्कशन है, वो भी 1-on-1 डिस्कशन बाय यूजिंग द मेंटर, ठीक है? उसके बाद आपको स्मैश प्रीलिम्स है, स्कोर बूस्टर है। तो फाउंडेशन में सब कुछ इंक्लूड है, नो नीड टू वरी। राइट सर, एक स्टूडेंट पूछ रही है या पूछ रहा है, आई डोंट नो हिज और जेंडर, कि एमईपी उनके फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए कैसे हेल्प करेगा? देखो फॉरेस्ट सर्विस की एग्जाम जो है, आपको समझना है कि बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो यूपीएससी में बहुत अच्छे हैं, आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे हैं, वही बच्चे फॉरेस्ट बन जा रहे हैं, फॉरेस्ट को निकाल रहे हैं, है ना?
तो आरुषि मिश्रा जो हमारी स्टूडेंट थी रैंक 2, तो उधर इनका रेवेन्यू में हुआ था यूपीएससी में, और उसी साल इनका रैंक 2 आया था फॉरेस्ट में। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप सिविल सर्विस का प्रोसीजर फॉलो करोगे तो आपको उधर की मेंस बहुत इजी जाएगी। वहां पे डिफरेंस ये है कि वहां पे 2 ऑप्शनल है, और वहां पे पाबंदी है कि आप एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री साथ में नहीं ले सकते, तो कुछ कुछ ऑप्शनल है, तो वो आप चूज कर लो। और एमईपी कैसे हेल्प करेगा? एमईपी में हम लेवल यूपीएससी के रखते हैं, वही लेवल यूपीएससी फॉरेस्ट के लिए भी रखती है। दूसरा, जो जीएस का पार्ट है इथिक्स छोड़ के, वो सारा आपको एमईपी का काम आ जाएगा, तो आप एमईपी ले सकते हो। और हमारे फॉरेस्ट वाले मेंटर्स भी हैं, तो डिस्कशन आपका फॉरेस्ट वाले मेंटर के साथ हो जाएगा। राइट। सर पीआईबी कितना रिलेवेंट बचा है अब नोट मेकिंग और करंट अफेयर्स में, क्वेश्चन है। मुझे देखो, पीआईबी तो गवर्नमेंट का सोर्स है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो गवर्नमेंट का सोर्स है तो रिलेवेंट है, बट आपके पास उतना टाइम नहीं है। योजना रिलेवेंट है, पीआईबी रिलेवेंट है, पीआरएस इंडिया रिलेवेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, द हिंदू भी रिलेवेंट है, बट आप करोगे कितना, है ना? तो उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो देख के ही आप उसमें कूदा करो। तो मेरा जो भी ये स्टूडेंट है उनको मेरा ये सजेशन, स्पून फीडिंग अप्रोच, जो कोचिंग जैसे सिविल डेली है, हम लोग हैं जो बैठ के 12-12 घंटे आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, आपको चीजें सिंपल करके दे रहे हैं, तो टेक अ बेनिफिट ऑफ दैट rather than making your own things and then presenting, then revising. That will create chaos in your mind. So be the manager of your life, be the director of your life, and keep the people as your employee. उनसे करा लो। तो बॉटम लाइन है कि आप समाचार मंथन का मैगजीन उठा के उसको पढ़ो, वीकली रिवाइज करो, पीआईबी देखने की जरूरत नहीं है। राइट। सो विद दिस वी हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एक आध रह गए होंगे बट हमने उस थीम में कवर कर लिया। तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस 2 डे वर्कशॉप। और फॉर्म मैंने सर्कुलेट कर दिया है। आपको हमारे मेंटोर्स, किसी भी इन हाउस मेंटोर से मिलना है, प्रवीण सर से कनेक्ट करना है, इनफैक्ट सजल सर से भी कनेक्ट करना है, तो आप वो फॉर्म फिल करिए। हम आपको कनेक्ट कराएंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आप बात करिए, हमारे मेंटोर से मिलिए, और फिर आप डिसाइड करिए कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। सेल्फ स्टडी से एक एग्जाम पॉसिबल है बिल्कुल क्रैक करना, बड़े बड़े फाउंडेशन कोर्सेज नहीं लेने हैं। और हम मेंटोरशिप से ही, हम आपको सेल्फ स्टडी करिए, आप हमारी मेंटोरशिप लीजिए, और आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से रैंक लाके क्रैक कर सकते हैं। हमने पास्ट में ये किया है, हम प्रेजेंट में ये कर रहे हैं, हम फ्यूचर में भी यही करेंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस एंड टेकिंग आउट योर टाइम, एंड आई होप यू हैव अ गुड नाइट अहेड। एंड थैंक यू सो मच प्रवीण सर ऑल्सो, आप दोनों दिन हमारे साथ थे। सो ऑफ कोर्स बिजी स्केड्यूल है, संडे है। So thank Thank you so much, Saket, for giving me this great opportunity to keep me in and talk with the student. I hope कि कुछ फायदा हुआ हो मेरा, and thank you so much for this great opportunity. I uplift you for the same. Thank you. Guys, we can leave the meeting now. Thank you so much. Thank you, students. Thank you.